Hello, children, how are you? Now I have completed the first chapter, that is the chemical reaction and equation, and I have to proceed towards the next chapter, that is the metal and non metal. As per your syllabus, it is the third chapter, but before starting that chapter, I thought that there is the link between some topic of class ninth in 10th also, and you should have clear concept about that, because unless you don't know how to write a chemical formula, you have not knowledge about balancing of chemical equation, then you will feel problem in chapter 1, 2 and 3 of class 10th chemistry. So I thought that I should prepare a videos for all of you, and that's why I am here along with this video. That is the main aim or objective for today's session, is that we are going to learn again how to write a chemical formula and how a chemical equation is balanced. Actually, the topic is written here, writing chemical formula and balancing chemical equation, a review. It is called a review. Why? Because we have completed the topic, we have studied about the chemical formula, how to write a chemical or molecular formula. All these things we have studied in class ninth. Now in class 10th, since the first chapter is chemical equation, it had been completed, but yet we are not, if we are not practicing those reaction to balance how it is balanced, then we have problems. तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें केमिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला लिखना आना चाहिए, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है आना चाहिए. बिकॉज इफ आई विल स्टार्ट द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, एंड देन अगेन आई हैव टू गो थ्रू दोज पॉइंट्स कि यहाँ पर देखो इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, ये मेटल है, नॉन मेटल है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है आपने पहले पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर उस नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो एक रिवीजन टाइप से आपको ये सेशन में लेने जा रहा हूँ, एंड आई होप दैट दिस सेशन विल बी ऑल्सो फ्रूटफुल एंड यू विल गेट नॉलेज फ्रॉम दिस सेशन, और आप सबको अच्छा लगेगा. सो माय डियर चिल्ड्रन, गेट रेडी विथ योर नोटबुक्स, and whatsoever is taught here, try to write in your notebooks, and do all the necessary steps which is required to complete the syllabus, because it is very important to learn from your home. Stay safe at your home and try to learn. So now I am going to start the chapter. First of all, here it is written, what is chemical formula. Actually, chemical formula or molecular formula indicates the kinds of atoms and the number of each kind in a molecule of a compound. बच्चों, अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं. अब आपके लिए एक सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट से मैं शुरू करता हूं, जहां से आप बात करते हो एलिमेंट की. We talk about compound. Element is the purest substance. It is made up of same type of atoms. Same type of atoms से मिलता है. And when two or more than two atoms combine together, then they form molecule. And we know that molecule may be homoatomic or it may be heteroatomic. And if molecule is homoatomic molecule, then it is element, and if molecule is heteroatomic, then it is compound. Is it clear? एलिमेंट और कंपाउंड आपको पता है. एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो थ्रू केमिकल रिएक्शन. इज इट क्लियर? अब बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चूंकि आगे आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ना है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन एटम और कुछ और ऐसे पॉइंट्स पे करेंगे, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं. तो यहाँ देखो बच्चों, अगर आप एटम की बात करोगे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मैं जस्ट उसी कॉन्सेप्ट को एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ. तो व्हेन देयर इज एन एटम,
इट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. एंड यू नो दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स are present inside the nucleus and they are called nucleons. Electrons revolves in orbit around the nucleus. तो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है मैं उसकी चर्चा करूँगा. सबसे पहले मान लो मैं एक एटम लेता हूँ सोडियम, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा है, उसी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ रिपीट करना है बिकॉज अप टू 10th क्लास लेवल दैट इज सफिशियंट. देयर इज नो नीड टू गो फॉर एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो यू हैव द डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स के एल एम. इसकी कैपेसिटी आपको पता है 2 फॉर के, 8 फॉर एल. एम की 18 कैपेसिटी है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने की कैपेसिटी. इज इट क्लियर? तो बच्चों के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, आउट ऑफ 11 देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 11 में से 2 माइनस हो गया, बच कितना गया 9. एल में आप मैक्सिमम कितना रख सकते हो 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया. अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 1. सो इन एम देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज इन एम सेल इज 1. आप सब याद करो, यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, इट इज 1. नाउ द अनदर वर्ड इज दैट इज वैलेंसी. दूसरा जो हमारा टर्म है वो है वैलेंसी. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल नॉन मेटल क्लासिफिकेशन जब आप करोगे, वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर आप चर्चा करोगे तो वहाँ ये सब कॉन्सेप्ट फिर से रिक्वायर्ड है. और ऑल्सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो आपका 5th चैप्टर होगा. दैट्स वाई माई डियर चिल्ड्रेन आई एम टेकिंग दिस सेशन. This is very important. Our concept should be clear. Valency is called combining capacity. Actually, this is the combining capacity. This is old definition, but now it is defined as valency is the capacity of an atom to donate, to accept or receive or share electron to get its octet position in outermost orbit. कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा फ्रॉम अदर एटम्स, और या दो एटम के बीच में शेयरिंग होगी ताकि उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. ये क्या है, डोनेट करना, एक्सेप्ट करना. एक्चुअली दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. किसी के पास है तभी तो वो देगा. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड, एक्सेप्टेड और रिसीव्ड और शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. तो बच्चों अगर आप अब बात करोगे कि हमारे सोडियम एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इट इज 1. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अब उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड इन दिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट? ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब बच्चों जरा ये बताओ, क्या कोई ऐसा एटम है जो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट से उठाकर इसको दे दे? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिसका 7 इलेक्ट्रॉन होगा उसको तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे. जैसे ही सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दे. तो सोडियम के पास बच्चों 2, 8 की पोजीशन आ जाएगी और ये एटॉमिक फॉर्म से किस में चला जाएगा, आयनिक फॉर्म में चला जाएगा.
सोडियम आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। पॉजिटिव आयन मतलब ये दानी था, इसके ऊपर पॉजिटिवनेस आ गई, यानी इसने किसी को डोनेट कर दिया, धनी होता है तभी तो इसने किया डोनेट। तो अब इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब कोई दूसरा एटम, अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की बात करो बच्चों, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 17 सॉरी उसका एटॉमिक नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करें, पहले आप फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ 2 दे दिया, बच गया अब आपके पास कितना, माइनस कर लीजिए 15। अब एल में आप 8 भर दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड ईयर, माइनस कर लीजिए 8, अभी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एम में कितना आप भर सकते हो? 7। अब आप बताइए मेरे से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? 7। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड हियर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? एक्चुअली एवरी स्टूडेंट्स नोज इट, अपने बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जरूर दिया होगा। टू कंप्लीट इट ऑक्टेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। सोडियम ने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे? 1 इलेक्ट्रॉन उसने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से दे दिया था। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। बट सिंस इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम दैट इट विल बिकम Cl माइनस, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसी से इसने ऋण लिया है, निगेटिव चार्ज मीन्स व्हाट? कर्ज लेना, निगेटिवनेस आ गई, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये 288 इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज आयन, दिस इज निगेटिवली चार्ज आयन, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। वी विल स्टडी इन मेटल एंड नॉन मेटल। हो गया बच्चों? तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पर जरा सा आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ। मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, तो ऑब्वियसली उस एलिमेंट के टेंडेंसी, उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस तो डोनेट कर देगा, 2 है तो वो डोनेट कर देगा, 3 है तो डोनेट कर देगा। जब बात 4 की होती है तो डोनेट करने से ज़्यादा वहाँ पर, चूंकि अब बात बीच वाली है, एनर्जेटिक क्राइटेरिया से अगर आप देखोगे, आप पढ़ोगे कार्बन एंड्स कंपाउंड में कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की जब बात आएगी तो वहाँ पर आप पढ़ोगे इस चीज़ को कि कार्बन क्यों नहीं C+ या C-4 या C-4 क्यों नहीं फॉर्मेशन करता, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट लैटर ऑन। सो हियर जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 6 7 ओके, 8 तो ऑलरेडी उसका ऑक्टेट पूरा है तो उसको हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं। बच्चों देखो, जिसका 1 2 3 होता है, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, डोनेट करना, लूज करना। और जो वैलेंसी होती है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हम यहाँ इस क्राइटेरिया को अलग रख रहे हैं। जिसका 4 होता है उसके लिए भी वही है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिसका 5 6 7 है या 8 है, मान लो 8 को भी रख लिया, तो वैलेंसी क्या होती है? इनका चूंकि टेंडेंसी, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ, जैसे क्लोरीन का हमने लिया 17 था, 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 माइनस 7 दैट इज 1। इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं बच्चों एटम के पास टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की, लूज करने की और शेयर करने की। शेयरिंग होती है तो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट, और जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है तो उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सो अगेन आई एम डिफाइनिंग द वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वी कैन से it is the number of electron which an atom can lose, gain or share with other atom to get octet condition, octet position in its outermost orbit.
तो आप सबको वैलेंस और वैलेंसी समझ में आ गई होगी, और मैं मेटल नॉन मेटल जब पढ़ाऊँगा तो बच्चों एक बार फिर इसको रिवाइज कराऊँगा। ओके, सुनाओ, केमिकल फार्मूला की बात कर रहे थे। केमिकल फार्मूला मीन्स फार्मूला ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, और उसी चूंकि उसमें हम मॉलिक्यूल है, जैसे अगर उसका मॉलिक्यूल है तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्सप्रेशन जहां आपको नंबर ऑफ एटम्स की बात होती है कि जितने भी एलिमेंट उस कंपाउंड में है, उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका एक्चुअल नंबर क्या है, उसकी जानकारी होती है। इसके अलावा एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है जहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स के नाम का पता चलता है और सिंपलेस्ट रेशियो हमें पता चलता है, उसके बारे में आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। हमें तो मेन टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इज इट क्लियर? तो बच्चों कुछ चीज़ है जिसको क्लू है उसको आप याद रखिए। बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बारे में अगर आप देखो तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वहीं से आपको क्लू मिल जाता है। मोनो मीन्स व्हाट? वन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड देखो डाई मीन्स 2, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन होगा। अगर ट्राई ऑक्साइड बोलेंगे नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई मीन्स 3, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो कुछ आप क्लू ऐसे भी निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। ओके, इसके बाद बच्चों देखो कुछ हमें रिमेंबर भी करना पड़ता है फार्मूला। जैसे आप वाटर है H2O, आप कॉमन नेम से आप उसको जानो, अमोनिया NH3, बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू राइट सम केमिकल इक्वेशन आप अमोनिया आ जाएगा। तो अमोनिया बच्चों आप क्या है फार्मूला उसको क्रिएट नहीं कर सकते, यू हैव टू रिमेंबर इट, NH3। Similarly, methane CH4, ethane C2H6. Actually, about these we will learn how to write the name of organic compounds in the chapter carbonates compound. That is your 4th chapter. Okay, so इसके बारे में मैं आपको बोल दूं कि आप इसके फॉर्मल नॉर्म्स को, रूल को पढ़ते हो, कैसे ये नाम लिखा जाता है। ओके, एंड 7 एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ मॉलिकुलर फॉर्म। जैसे आपको हाइड्रोजन लिखना है तो आप H2 लिखोगे, सिंपल H एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो मॉलिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है एलिमेंट उसको मॉलिकुलर फॉर्म कहना है। सपोज आई से दैट हाइड्रोजन रिएक्ट विद, तो यू विल राइट H2+। नाइट्रोजन इट इज रिटन एज N2, ऑक्सीजन रिटन एज O2। ऑल अदर हैलोजन्स एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको आप कैसे लिखोगे? मॉलिकुलर फॉर्म में लिखोगे। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। नाउ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, वो तो हम बाद में इस टॉपिक पे देखेंगे। अगर कंपाउंड आयनिक है तो इट इज़ ऑल अबाउट द चार्जेस H आयन। आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको एक हम टेबुलर फॉर्म में बताएंगे, जैसे आपके एलिमेंट की और सिंबल्स वो आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि आपको केमिकल फार्मूला लिखना है, इक्वेशन बैलेंस करना है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, ये सब आपके NCERT बुक में दिया है एंड यू शुड गो थ्रू इट। कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, लैटिन नेम आप उसको याद रखना है। बहुत सारे हैं जिसके नाम तो डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ लैटिन नेम से आते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। जैसे सोडियम है, S से नहीं होता है, Na होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो एलिमेंट और उसके सिंबल याद रखिए। नाउ फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला व्हाट वी शुड नो द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड रेडिकल। एक्चुअली द वर्ड रेडिकल इज यूज्ड हियर। What is radical? Radical is an atom or group of atom which is as a unit, एक यूनिट के रूप में वो एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और हमें उस रेडिकल की वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर आपके लिए कुछ हमने टेबुलर फॉर्म, एक्चुअल में दिस टेबल इज गिवन इन योर NCERT बुक ऑल्सो इन क्लास 9th। अगर आप वहाँ से रेफर कर लो तो बहुत अच्छा है, याद कर लो बहुत अच्छा होगा। सोडियम Na+, चार्ज क्या हो गया 1, जिसके ऊपर वैलेंसी यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ वैलेंसी 1 2 3, ये जितने इनकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 2। सबके ऊपर चार्ज क्या है? +2। व्हाट इज डू मीन बाय दिस +2? इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कैल्शियम, इन सब के पास टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। एल्यूमिनियम की कितनी है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। कुछ और यहाँ देख लो, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स
जिनके अंदर टेंडेंसी अब हाइड्रोजन दो रूप में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H+ के रूप में, यानी कि लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, इसकी दोनों टेंडेंसी है, यानी आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की तरह बिहेव करता है। क्लोराइड देखो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ब्रोमाइड एक, आयोडाइड एक ले सकता है, यानी ये नाम पर भी ध्यान दीजिए, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, टेंडेंसी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। दीज चार्जेस आर एक्चुअली देयर वैलेंसी, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी। नाइट्राइड N3-। इन सब में आपने क्या देखा, आप ये देख रहे हो ना कि सारे के सारे क्या एक सिंगल एटम है। अब ग्रुप ऑफ एटम्स अब आपके पास आएंगे। अमोनियम, तो जब अमोनियम हो गया NH4+ हो गया, तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, एंड दिस पॉलीएटॉमिक आयंस आर कॉल्ड रेडिकल्स। These single atoms are also called radicals because they act as a unit in a chemical formula or a molecular formula. आप बच्चों देखो, किसी केमिकल का जब नाम आता है, जैसे अगर आता है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें कितने वर्ड्स है बताओ, 2 है, सोडियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम कहाँ है, आप देखो सोडियम यहाँ है, क्लोराइड कहाँ है, यहाँ है, यानी एक पॉजिटिव रेडिकल है, एक नेगेटिव है, यानी एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक है। आपको इन्हीं के तो वैलेंसी और नाम याद करके इन दोनों को कंबाइन करता। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम आपको यहाँ है, सल्फेट यहाँ है, पहला पॉजिटिव। जब केमिकल कंपाउंड, कभी भी सल्फेट अमोनियम नाम नहीं आएगा। When the name of a chemical substance is given, it is always first the name is of positively charged ion, second name is of the negatively charged ion, यानी कि पहला बेसिक रेडिकल देन एसिडिक रेडिकल। इज इट क्लियर? अब सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये बच्चों एक बार फिर से आपके सामने हमने टेबल ला के रख दिया, आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है। बट माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ वर्क हार्ड, go through the revision work. That's why, because it is important to understand the concept of chemistry and to learn all those points, because you have to appear in the board examination in 2021. Okay, so now radical का definition है, radical a group of atoms or maybe a single atom behaving as a unit in a number of compounds. जैसे यहाँ पे देख लो, बेसिक रेडिकल जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दीज आर द बेसिक रेडिकल्स, नेगेटिवली चार्ज आयन आर एसिडिक रेडिकल्स। ये नाम एक्चुअली आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं होगा, आपके यहाँ लिखा गया है बुक में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब मान लो इन दोनों को मिला दो, दोनों की वैलेंसी चेक करो, दोनों की वैलेंसी सेम है, इसलिए सीधा लिख दिया। जहाँ पे वैलेंसी सेम नहीं होगी, जैसे यहाँ पे +1 यहाँ पे 2 है, देखो 2 माइनस है, तो यहाँ पे आपको Na2SiO3 हो गया। अब हम इसकी चर्चा कर लेंगे, जरा कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको फार्मूला लिखना है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, उसका सिंबल लिखो, हाइड्रोजन का सिंबल H लिखा, क्लोरीन का Cl लिखा। अब दोनों की वैलेंसी लिख लो, तो वैलेंसी H की 1 होती है, Cl की 1 होती है। कुछ बेसिक रूल फॉलो कर लो, इफ़ द वैलेंसी इज सेम देयर इज नो नीड टू क्रॉस। अगर वैलेंसी सेम है, यहाँ तो दोनों की वैलेंसी सेम है, नहीं तो ऐसे क्रॉसिंग करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। अब मैं आपको कुछ अलग से एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। सपोज आपको लिखना है सोडियम कार्बोनेट, यू हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, सिंबल लिखोगे। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, कार्बोनेट का क्या है, CO3। फिर आपको क्या करना है, आपको करना है इनकी वैलेंसी लिखनी है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, वैलेंसी को क्रॉस कर दो, यानी अब आपको क्या हो गया, Na के सब स्क्रिप्ट में, यू हैव टू राइट द वैलेंसी इन सब स्क्रिप्ट, याद रखना, सुपर स्क्रिप्ट में मत लिख देना, नीचे लिखते हैं बच्चों, Na2CO3। सिंपल है। सपोज करो आपको लिखना था एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम सल्फेट Al, यहाँ पर सिंबल हो गया, सल्फेट का पॉलीएटॉमिक आयन है SO4, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, सब स्क्रिप्ट में 2 जाएगा, यहाँ सब स्क्रिप्ट में 3 आएगा। माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू विल राइट लाइक दिस Al2SO4 और यहाँ 3, तो ये 43 हो जाएगा। चूँकि इन दोनों को सेपरेट करना है, ये जो 3 है, दिस 3 शुड मल्टीप्लाई टू दीज ऑल एटम्स, इसलिए यू हैव टू यूज ए स्मॉल ब्रैकेट। पॉलीएटॉमिक आयन में जब भी आप सब स्क्रिप्ट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपको स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना है। ओके, नाउ
आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ यहाँ दे रखा है, फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ओ लिखेंगे +3 ओ, यहाँ पर 2 माइनस लिख लो या 2 लिख लो, वैलेंसी मीन्स जस्ट नंबर यू हैव टू राइट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, देन इट विल बी Al2O3। इज इट क्लियर? फार्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, वैलेंसी 2 -2। जब ये वैलेंसी दोनों की सेम हो, देयर इज नो नीड टू क्रॉस, सिंपली राइट CaO। क्लियर? सोडियम नाइट्रेट का आप लिख लीजिए, आगे आप खुद से करिए। सोडियम ऑक्साइड, दिस 4 यू हैव टू राइट एज अ होमवर्क फ्रॉम माय साइड। राइट द फार्मूला फॉर सोडियम नाइट्रेट, sodium oxide, aluminum chloride, sodium sulfide, magnesium hydroxide. If, my dear children, you are capable of writing molecular formula after viewing this video, I think that my effort will be fruitful and I hope you will 110% do at your home. आप सब प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, और मैंने इसमें टेबल दे रखा है जो आपके 9th क्लास की बुक में था, सो आप उसको रिमेंबर करिए। बहुत अच्छा टाइम है इसको रिवाइज कर लेने का और अपने आप को केमिस्ट्री पार्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट करने का, स्कोरिंग बनाने का। ओके तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरीके से फार्मूला लिखना है। सो आई थिंक नाउ आई शुड मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, सो आई शुड प्रोसीड। ओके नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट एम फॉर टुडेज सेशन इज स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। स्टेटमेंट हम लिखते हैं बच्चों, आप पहले केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे, आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट फाउंड इन द इक्वेशन, तो ये सब स्टेटमेंट हम लिखते हैं। हमें स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इम्पॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कि अगर उस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया तो आप समझिए कि हमारा काम आसान हो गया। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने बताया था कि जैसे आपको CH4 में +O2 CO2 +H2, तो आप सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ये बहुत सारा स्टेटमेंट का उसका लिखा हुआ है, देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स, जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। CH4 +O2 CO2 +H2। Now what is happening here? CH4, आपको मैंने कहा था पहले आप एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने उनकी नंबर्स हैं उसको लिखेंगे। कार्बन 1, इन प्रोडक्ट साइड इट इज़ 1, हाइड्रोजन इज़ हियर 4, इन प्रोडक्ट साइड इट इज़ 2, ऑक्सीजन इज़ हियर 2 एंड इन प्रोडक्ट साइड इट इज़ 3। एंड देन मैंने आपसे ये कहा था कि हीट एंड ट्रायल मेथड से आप जो इक्वल है तो ये इक्वल है, इधर कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है तो यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया ये 4 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। जब आप अब ऑक्सीजन को देखो, 2 और 2 यहाँ से आपको हमेशा कैसे नंबर, मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को चेंज नहीं करना है, आप उसके फार्मूला से आगे में अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखो 2 और 2, यहाँ टोटल आपको कितने ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 3 से बढ़कर कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। ऑक्सीजन अब इस साइड हमारा कम पड़ रहा है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ बच्चों का ये है कि सर ये हिट एंड ट्रायल मेथड तो आप करोगे लेकिन इट विल टेक टाइम, देयर इज अगर कोई बहुत लंबा सा इक्वेशन हुआ तो क्या हम उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में सक्सेसफुल होंगे? जैसे आपको Al2SO4 है उसको बैलेंस करना है, तो बच्चों जस्ट अ ट्रिकी मेथड आई एम एक्सप्लेनिंग हियर एंड आई होप इट मे बी फ्रूटफुल फॉर यू। आप लोग लेकिन जो छोटे से इक्वेशन होंगे वहाँ पर इसको अप्लाई मत करना। इफ़ देयर इज सम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देन यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। मैं इसी इक्वेशन को एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। CH4 +O2 CH4 +O2 arrow mark CO2 +H2. What you have to do, my dear students, just write A, B, C and D. जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पीछे ABCD आप लिख दो। अगर इसमें 5 है, मान लो रिएक्टेंट साइड में 3 है तो A B C कर दो, उधर आगे D E F कर दो।
नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे कोई डिफरेंस नहीं, आप ABCDEF अल्फ़ाबेटिकली लिख दीजिए। अब आप देखो A से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन की संख्या पे देखो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, A है, राइट साइड में कार्बन की संख्या किसके इक्वल होगी, C की, यानी A इक्वल टू C। हाइड्रोजन की संख्या देखो यहाँ 4 से A में मल्टीप्लाई हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट साइड में कितनी है 4A, प्रोडक्ट साइड में देख लो कितनी हो रही है, D से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2D। इज इट क्लियर? अच्छा ओके। हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की संख्या आप देख लीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2B, प्रोडक्ट साइड में यहाँ 2 से C में मल्टीप्लाई करोगे और D से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2C प्लस D, ये लिख लेना है। ये अलजेब्रिक मेथड है। इसके बाद आप क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू, लेट, आप लेट कर लेना, सपोज कर लेना कि A इज इक्वल टू 1। जैसे आपने A इज इक्वल टू 1 लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। एक्चुअली दिस मेथड इज वेरी प्रैक्टिकल इफ यू हैव प्रैक्टिस ऑल्सो। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 1। जब C की वैल्यू 1 हो गई, अब इस सेकेंड इक्वेशन में A की वैल्यू रख लो, यहाँ से हम अब लेते हैं 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 2D, D इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी D की वैल्यू भी आपको 2 मिल गई। अब इस इक्वेशन में आप आ जाओ, अब यहाँ से आप क्या करोगे, 2B 2C, आपको मालूम है C की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 और D की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब हो गया 2 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 4, तो 2B इज इक्वल टू 4, तो B इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है B की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू गॉट, यू जस्ट गॉट A इज इक्वल टू 1। अब इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1CH4 प्लस B इज इक्वल टू 2 2O2, C इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, CO2 प्लस D इज इक्वल टू 2H2। जस्ट सी, आई थिंक इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। हमारा इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। इज इट क्लियर? ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, बट व्हेन द इक्वेशन इज कॉम्प्लिकेटेड। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि C+O2 CO2 लगा और आपको कुछ बैलेंस करने की जरूरत महसूस है, आप इसमें इसको अप्लाई करो। व्हेन इक्वेशन इज कम्प्लीटेड, दिस इज द मेथड जहाँ हिट एंड ट्रायल आपको अप्लाई नहीं करना और इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो this was my aim for today's video, that you should know the concept of atoms, molecules, compounds, valence electron, valency, how to write chemical formula, how to balance equation. I have explained about it in my first video from the first chapter here, but today through the not only with hit and trial method, but there is another algebraic method of balancing the equation I explained at the end, and I think whatsoever homework given in my first video, you will apply it in the same case। आप algebraic method से करके बच्चों देखो, आपको अच्छा लगेगा, आप करेंगे। Okay, so once again thanks to all for watching my videos. Please subscribe my channel also, and my all videos are available on my blog. I am writing the link for my blog, which is http://SC Yadav KV Ankleshwar .spot blogspot, not a spot, blogspot.com. Okay, so once again thanks for watching my videos. I hope my aim is to clarify your concept regarding those you have already studied in class 9th, and this is very important for class 10th also. Hoping for best. Once again thank you to all.